everyone. So today is the one of the topic of the emergency and disaster management from the nursing management and how to protect ourselves and the human beings in the condition of emergency or in the condition of disaster where the man and this world is facing the problem in that situation, how we can do the management of the particular in the condition of emergency and disaster. So let us see about the emergency and disaster management. So what do you mean by the emergency disaster management? So emergency and casualty services here. So emergency and casualty services of both private and public hospitals providing medical and surgical, orthopedic and all other types of emergencies found around the clock. So emergency and casualty services of the both private and public hospital, जो private hospitals होते हैं या पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें उनके अंदर हम क्या करते हैं कि मेडिकल, सर्जिकल एंड ऑर्थोपेडिक और अदर टाइप ऑफ इमरजेंसी केयर राउंड द क्लॉक प्रोवाइड कराते हैं, जो एक प्रकार से यूनिट होती है जिसको हम कहते हैं इमरजेंसी एंड कैजुअलिटी एंड इमरजेंसी यूनिट, वेयर वी आर प्रोवाइडिंग द सर्विस in the both private and public hospital in the form of medical, in the form of surgical, in the form of orthopedic and other type of emergency in all the time. So this is known as emergency. So the department, this department giving care to the patient. So these emergency and casualty services providing the care to the patient by, and who all are the providing the care in the particular emergency and casualty department. So here when the patient arrive by the self, जब patient खुद आता है तब उस कंडीशन में डिपार्टमेंट केयर देता है, या किसी भी ब्रॉड बाय द रिलेटिव्स या कोई भी रिलेटिव लेकर के आता है पेशेंट को, उस कंडीशन में उसको कैजुअलिटी और इमरजेंसी केयर दी जाती है. जैसे कई बार आपने देखा होगा किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है, या किसी को बर्न्स हो जाता है, या किसी को एनी इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है या ब्रीथलेसनेस होता है, जो भी प्रॉब्लम होती है उसको या वो खुद आता है या उसके रिलेटिव लेके आते हैं. ठीक है, तो दैट इज द वन ऑफ द कंडीशन when the emergency or any casualty is occurring. So we have to provide the emergency or first aid care or emergency care. So we have to take the patient to the hospital, whether it is private or whether it is public hospital. So brought by the police, जो पुलिस के द्वारा जो लाने वाले जो केसेस होते हैं, जैसे किसी ने गन शॉट किया है या किसी का एक्सीडेंटल केस हो गया है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है या किसी का मर्डर हो गया है, तो इस तरह के जो केसेस होते हैं उनको पुलिस खुद लेकर के आती है. ब्रॉड ड्यू टू द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जो रोड ट्रैफिक RTA हो जाता है तो उस कंडीशन में पेशेंट को लाया जाता है. ब्रॉड एज ए रिजल्ट ऑफ द एक्सीडेंटल फॉल्स एंड पॉइजनिंग, जो पॉइजनिंग के केसेस होते हैं या एक्सीडेंटल फॉल्स हो जाता है, उस कंडीशन में पेशेंट को लाया जाता है. सो दीज आर द सम ऑफ द कंडीशन where all these departments is giving the care to the patient in the following condition. So this is the emergency and casualty services. So next move on, in a life threatening condition need to provide prompt and effective services. जहाँ पर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, जहाँ पर पेशेंट की लाइफ एकदम ऐसी होती है कि पेशेंट की डेथ होने जा रही है, ठीक है, और जो सिचुएशन ऐसी है, क्रिटिकल सिचुएशन है, तो उस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर हम प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव सर्विसेज उस पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि वो उसकी एक जरूरत है. उस जरूरत के बिहाफ पर हम एक प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं. डिले इन द प्रॉपर केयर लीड टू द मोर्टेलिटी. यदि हम पेशेंट को डिले कर देते हैं, अचानक एक्सीडेंट हो गया, बर्न्स हो गया या किसी का फॉल्स हो गया या कोई पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया, हम यदि वो डिले कर देते हैं, we are not taking the patient to the emergency department if we are delaying for the proper care, which lead to the mortality, so death हो सकती है. Patient who are admitted to the casualty services may be suffering from, जो patient casualty services के लिए admitted होता है
उस कंडीशन में कौन कौन सी कंडीशन होती हैं जिसमें पेशेंट को कैजुअलिटी सर्विस के लिए एडमिटेड किया जाता है? देयर आर सम ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर इंजुरीज, जैसे किसी पेशेंट को इंजरी हो जाती है, जैसे एक्सीडेंट के दौरान इंजरी हो जाती है, सुसाइडल के दौरान इंजरी हो जाती है, होमिसाइडल के दौरान इंजरी हो जाती है। ठीक है, सुसाइडल, होमिसाइड, बर्न्स के दौरान एक्सीडेंटल बर्न्स हो जाता है, सुसाइडल होमिसाइडल कंडीशन आ जाती है, पॉइजनिंग हो जाता है, सडन एनालिसिस वगैरह हो जाती है, एक्यूट एक्सर्वेशन और ऑन एन एग्जिस्टिंग डिजीज, जब डिजीजेस के जैसे कि लेप्रोसी टाइप ऑफ इन्फेक्शन कोई भी स्प्रेड होता है और वो धीरे धीरे एक्यूट कंडीशन के साथ साथ वो क्रॉनिक कंडीशंस डेवलप कर लेता है, तो उस प्रकार की जो कंडीशन डेवलप होती है उन कंडीशनों के अंदर हम कैजुअलिटी सर्विस के दौरान हम उनको एडमिट करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट मूव ऑन द फंक्शन ऑफ इमरजेंसी केयर एंड कैजुअलिटी। सो देयर आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द इमरजेंसी केयर एंड कैजुअलिटी। क्या फंक्शंस रहते हैं इमरजेंसी केयर एंड कैजुअलिटी के, क्या फंक्शंस रहते हैं? जो फर्स्ट फंक्शन है आपका, मूव ऑन द फर्स्ट फंक्शन, टू अटेंड ऑल पेशेंट ब्रॉट टू द डिपार्टमेंट एंड डिसाइड एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट। सभी पेशेंट को अटेंड करना जिनको डिपार्टमेंट में लाया गया है, क्लियर, और उस पेशेंट के बिहाफ पर हम पूरा कंप्लीट मैनेजमेंट करते हैं, प्लान करते हैं कि कौन कौन सी केयर हमें उस पेशेंट को देनी है। पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर लाया जाता है, डिपार्टमेंट कैजुअलिटी के अंदर लाया जाता है, तो उस पेशेंट को अटेंड कर किया जाता है। अटेंड करने के बाद हम एक प्रकार से प्लानिंग करते हैं, मैनेजमेंट की प्लानिंग करते हैं कि उस पेशेंट को हमें क्या इमीडिएट प्रोवाइड कराना है। तो देयर आर सम ऑफ दी कंडीशंस हैं, जैसे कि कौन कौन सी चीजें हम प्रोवाइड करा रहे हैं। इमीडिएट रिससिटेशन करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम फर्स्ट एड देते हैं पेशेंट को, इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन कराते हैं, रेफरल टू द स्पेसिफिक स्पेशलिटी। यदि उस स्पेशलिटी के, यदि जो भी स्पेशलिटी है, जैसे उसकी सीआरएफ हो गया, क्रोनिक रीनल फेलियर हो गया है, कार्डियक अरेस्ट हो गया है, एमआईए हो गया है, स्ट्रोक हो गया है, ठीक है, तो इस फॉलोइंग डिपार्टमेंट के अंदर के स्पेशलिटी के अंदर पेशेंट को रेफर कर देते हैं। द नेक्स्ट है आपका ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट टू डिसाइड वेदर द नीड्स एडमिशन और वेदर ही कैन गो होम एंड अटेंड आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। जब पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आता है तो वहाँ की जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है वो ये डिसाइड करता है कि पेशेंट को एडमिट करना है या पेशेंट को घर भेजना है या उसको ओपीडी सर्विस हमें प्रोवाइड करानी है। तो उसके ऊपर एक ऑब्जर्वेशनल स्किल्स डेवलप होती है। रिएश्योरेंस एंड शॉर्ट काउंसलिंग, reassure किया जाता है पेशेंट को if the patient is having the any psychological problem is related to the treatment, related to the admission, any other type of problem with the patient, we have to reassure the patient and we have to give the short counseling for the patient. So these are the some of the condition, जिस condition के अंदर patient जो particular department होता है वो एक decide करता है मैनेजमेंट के लिए जो patient के लिए हमें देना है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द कंडीशन। सेकंड इज टू कैरी आउट द मेडिको लीगल फॉर्मेलिटीज। यदि किसी पेशेंट, यदि पुलिस के द्वारा लाया गया है या पेशेंट को सर्जरी के लिए भेजा जा रहा है या पेशेंट को पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर सीबीआरटी के अंदर भेजा जा रहा है, तो मेडिको लीगल फॉर्मेलिटी फॉलो करते हैं। कंसेंट फॉर्म ले लेते हैं पेशेंट से। पेशेंट यदि लेने में अनेबल है तो पेशेंट के रिलेटिव से हम ले सकते हैं। सो मेडिको लीगल फॉर्मेलिटी हम उसमें फॉलो करते हैं। देन थर्ड है आपका टू कैरी आउट नॉन इमरजेंसी सर्विसेज एज पर पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज होती हैं उनके अनुसार जो नॉन इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं उनको हम कैरी आउट करते हैं, ठीक है। जैसे कि नॉन इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर कौन कौन सी है पॉलिसी के हिसाब से, कि नॉन इमरजेंसी सिचुएशन में हम कौन सी केयर दे सकते हैं पेशेंट को। नॉन इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर जैसे कि पेशेंट को ड्रिप स्टार्ट कर देना, आईवी लाइन स्टार्ट कर देना, क्लियर। सो नेक्स्ट जो हम रूटीन केयर देते हैं उसके बिहाफ पर हम सर्विसेज दे सकते हैं। दीज आर द नॉन इमरजेंसी सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि इवनिंग डिस्पेंसरी, एंटी रेबीज क्लिनिक्स वगैरह होती हैं। इवनिंग डिस्पेंसरी में हम उनको रेफर कर सकते हैं। एंटी रेबीज क्लिनिक्स होती है, यदि कुत्ते के द्वारा काटा हुआ पेशेंट है
ठीक है, तो उस कंडीशन में एंटी रेबीज क्लिनिक में हम पेशेंट को ट्रांसफर कर देते हैं। इवनिंग डिस्पेंसरी में जहाँ पर पेशेंट को एक शॉर्ट लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म केयर दी जानी है, वहाँ पर हम पेशेंट को इवनिंग डिस्पेंसरी के अंदर हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। टू मेंटेन द लिस्ट ऑफ द डॉक्टर्स ऑन इमरजेंसी ड्यूटी, पर्टिकुलर जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर जो डॉक्टर्स होते हैं, उनकी ड्यूटी जो लिस्ट होती है उसको हम मेंटेन करके रखते हैं कि कौन सा डॉक्टर शाम को या मॉर्निंग में अवेलेबल है। ठीक है, यदि नहीं है तो हम अल्टरनेटिव मैनेज अरेंजमेंट के कौन सा डॉक्टर उसके बिहाफ पर हम दूसरा अरेंज कर सकते हैं। यदि कोई भी डॉक्टर अरे बिजी है बहुत ज्यादा, तो उस कंडीशन में उसकी जगह हम रिप्लेसमेंट कौन सा डॉक्टर करेंगे, तो उस कंडीशन में हमें ये मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट जो है, टू बी प्रिपेयर्ड फॉर मास कैजुअलिटी इन इवेंट ऑफ ए डिजास्टर सिचुएशन। डिजास्टर सिचुएशन के अंदर जो बहुत सारी कैजुअलिटीज हो जाती है, उनके लिए हमें तैयार रहना। ठीक है, बहुत एक साथ बहुत सारी कैजुअलिटी आ जाती है। जैसे कि बस का एक्सीडेंट हो गया, तो बस के अंदर अराउंड 50-60 पर्सन जो है वो इंजर्ड हो गए, तो एक साथ वो इंजर्ड पेशेंट यदि पर्टिकुलर कैजुअलिटी के अंदर या इमरजेंसी के अंदर आ जाते हैं, तो उसके लिए हमें तैयार रहना। देन नेक्स्ट, टू मेंटेन अप टू डेट लिस्ट ऑफ क्रिटिकली इल पेशेंट फॉर द पर्पज ऑफ, हम पर्पज किस पर्पज के बिहाफ पर जो क्रिटिकली इल पेशेंट होती है उसकी डेट लिस्ट को हम मेंटेन करते हैं। ठीक है, अप टू डेट करते हैं, लिस्ट ऑफ द क्रिटिकल इल पेशेंट को अप टू डेट बनाए रखते हैं हम कि कौन सा पेशेंट कब आया है और किस तरह पेशेंट को कौन सी केयर दी है, पेशेंट कब डिस्चार्ज हुआ है, किस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम थी, पेशेंट को वेदर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में रखा गया है या पेशेंट को घर सेंड कर दिया गया है, या पेशेंट को पर्टिकुलर आईपीडी बेसिस पर रखा गया है एडमिशन के लिए, या पेशेंट ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया है। तो उस तरह की जो डेट लिस्ट होती है हम उसको तैयार करते हैं अप टू डेट। सो उस कंडीशन में क्या उसका पर्पज होता है, पर्पज ये रहता है कि इश्यू वन विजिट पास टू रिलेटिव। यदि पेशेंट को एडमिट किया गया है तो एक ही रिलेटिव को विजिट पास हम इश्यू करेंगे। ठीक है, जो रिलेटिव्स होते हैं उनके लिए वन विजिट पास हम उन रिलेटिव्स को करेंगे। केवल एक व्यक्ति ही हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को देखने आ सकता है। ठीक है, एक ही पास हम उसको इश्यू करते हैं। देन नेक्स्ट जो है आपका रिप्लाई टू टेलीफोन कॉल्स, जो टेलीफोन कॉल्स होते हैं उसके द्वारा रिप्लाई करते हैं। पेशेंट की जो जनरल कंडीशन है या पेशेंट की जो भी पर्टिकुलर कंडीशन है उसको हम टेलीफोनिक कॉल्स के द्वारा हम उसको इंफॉर्मेशन देंगे। डिसाइडिंग ऑन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पेशेंट फ्रॉम अदर हॉस्पिटल, यदि पेशेंट की जनरल कंडीशन में कोई भी सुधार नहीं आ रहा है, ठीक है, पेशेंट की बहुत ज़्यादा सीवियरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और हमें क्या है उसको पेशेंट को हम क्या करें ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी अदर हॉस्पिटल से, तो उस अदर हॉस्पिटल से हमें डिसाइड करना है। डिसाइडिंग ऑन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, मतलब पेशेंट को हमें एक्सेप्ट करना है या उसको रिजेक्ट करना है। यदि कोई भी पेशेंट ट्रांसफर होकर के हमारे हॉस्पिटल में आ रहा है तो उस पेशेंट को हमें डिसाइड करना है कि लेना है या उसको रिजेक्ट करना है। असिस्टिंग इन द इंट्रा हॉस्पिटल ट्रांसफर, जो इंट्रा हॉस्पिटल ट्रांसफर होते हैं उसके अंदर जो पेशेंट को एक दूसरे यूनिट के हॉस्पिटल जो होते हैं उनके अंदर भेजना, उसको असिस्टिंग में ये पर्टिकुलर हेल्प करता है। So these are the some of the functions of the emergency care and casualty. So next, this is the function of the emergency care already shown in the diagrammatic representation. Here is the organizing manpower supplies, intermediate resuscitation, carrying out medical legal formalities, maintaining up to date list, recording system होता है, carrying out services of the non emergency, disaster preparedness. So these all comes in the function of the emergency care in the short brief uh, explanation about the functions of the emergency care. So here we have to see the site, area and design of the emergency casualty. So emergency या casualty के अंदर साइट, एरिया, डिजाइन, किस तरह की साइट होती है, किस तरह का एरिया होता है, किस तरह का डिजाइन होता है उस इमरजेंसी और कैजुअलिटी के अंदर। सो इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट नीड टू बी सिचुएटेड ऑन ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर
ये सिचुएटेड होता है नियर और इन फ्रंट ऑफ द एंट्रेंस गेट ऑफ द हॉस्पिटल। जो है हॉस्पिटल का जो एंट्रेंस गेट होता है उसके पास या उसके सामने ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट सिचुएटेड होता है ऑन द ग्राउंड फ्लोर के अंदर। मस्ट हैव प्रॉपर साइन बोर्ड दैट कैन बी इल्यूमिनेटेड एट नाइट और इजीली विजिबल। जब आप कभी भी जाओगे हॉस्पिटल के सामने आप देखोगे कि एक इमरजेंसी डिपा लिखा रहता है ऊपर विजिबल में पूरा एक कंप्लीट रेड बटन रेड उसका डिस्प्ले बोर्ड होता है। डिस्प्ले बोर्ड के अंदर आप देख सकते हो प्लस प्लस के निशान होते हैं इमरजेंसी लिखी हुई होती है ऊपर। तो इस तरह हम उस साइन बोर्ड को एल्यूमिनेट करके जो कि वो इजीली नाइट को विजिबल हो सके। सो नॉट टू हैव मोर ट्रैफिक इन फ्रंट, मतलब इमरजेंसी और कैजुअलिटी के सामने बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। इट हैज 3 सेपरेट एरियाज, इसके अंदर 3 सेपरेट एरियाज होते हैं। ठीक है, एंट्रेंस होता है कैजुअलिटी सर्विसेज से एंट्रेंस होता है, ओपीडी सर्विस और आईपीडी सर्विस। 3 सेपरेट एरियाज विद अ सेपरेट एंट्रेंस। इन तीनों के सेपरेट तो एरियाज होते हैं और सेपरेट एंट्रेंसेस होते हैं। जैसे कि कैजुअलिटी सर्विसेज ओपीडी सर्विस के लिए अलग होता है, आईपीडी सर्विस के लिए अलग एंट्रेंस होता है, अलग सेपरेट एरियाज होते हैं। तो इस प्रकार के एरियाज यहाँ पर दिए हुए हैं। So next move on the essential important areas for effective functioning of casualty services. जो there are mainly some of the essential important areas होते हैं जिसके अंदर हम कैजुअलिटी सर्विस की इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए जरूरत होती है। मतलब हम कैजुअलिटी सर्विस की जो इफेक्टिव फंक्शनिंग को मूव करने रोल मतलब रन करने के लिए ये इसेंशियल इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। रिसेप्शन और इंक्वायरी काउंटर जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं कैजुअलिटी सर्विसेज के जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं जहाँ पर हम इजीली जो फैसिलिटी है वो अवेल कर सकें, इजीली उनसे कांटेक्ट कर सकें। सो फर्स्ट आपका है रिसेप्शन और इंक्वायरी काउंटर। हम रिसेप्शन पे भी मालूम कर सकते हैं, इंक्वायरी काउंटर पे भी मालूम कर सकते हैं। पेशेंट की सारी डिटेल्स होती हैं कि किस पेशेंट को कहाँ पर एडमिट किया गया है, कब कहाँ पर लाया गया है, कब किया गया है, कब। सो वेटिंग एरिया फॉर द रिलेटिव, जो रिलेटिव्स होते हैं उनके लिए वेटिंग एरियाज होते हैं। जहाँ पर पेशेंट के जो रिलेटिव है उनको हम ठहरा सकते हैं, वहाँ पर वेटिंग एरियाज होते हैं। स्पेस फॉर द ट्रॉली एंड व्हील चेयर, जो व्हील चेयर और ट्रॉलीज होती हैं उनके लिए स्पेस होता है। स्पेस फॉर द ट्रॉली एंड स्ट्रेचर बॉयज एंड एम्बुलेंस ड्राइवर, जो स्ट्रेचर बॉयज होते हैं, ट्रॉलीज होती है, एम्बुलेंस ड्राइवर होता है, उनके लिए अलग से स्पेस होता है। सिक्योरिटी स्टाफ के लिए, पुलिस कांस्टेबल के लिए अलग से स्टाफ स्पेस होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटर या नाइट सुपरवाइजर उसके लिए एक अलग से स्पेस होता है। पेशेंट डॉट द डेड, पेशेंट को यदि मरा हुआ लाया है, डेड लाया हुआ है तो उसके लिए भी एक अलग से स्पेस होती है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट एरियाज जहाँ पर इफेक्टिव फंक्शन ऑफ द कैजुअलिटी सर्विस को हम रन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है फैसिलिटीज फॉर द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट होता है उनके लिए फैसिलिटीज क्या क्या दी हुई है कि वंस पेशेंट इज बिल्ड इन द एग्जामिनेशन एरिया, मतलब एक बार पेशेंट को एग्जामिनेशन एरिया में लाया गया जहां पर हम स्टाफ या ड्यूटी के द्वारा इमीडिएटली अटेंड करने की हमें बहुत जरूरत होती है। ठीक है, किसी भी स्टाफ या कोई भी जिसकी ड्यूटी लगी हुई है, यदि कोई भी स्टाफ ऑन ड्यूटी पे है तो तुरंत ही वो उस पेशेंट को अटेंड करे और उस पेशेंट को एग्जामिनेशन के लिए ले जाए, उस एग्जामिनेशन एरिया में उसको ले जाए और वहाँ पर एग्जामिनेशन उसको कराया जा सके। फैसिलिटीज रिक्वायर्ड इंक्लूड एग्जामिनेशन, फैसिलिटीज जो होती हैं एग्जामिनेशन रूम के अंदर जिसमें दिया हुआ है कि आपकी एग्जामिनेशन करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रांसफर टू द सुटेबल एरिया, सो देयरफॉर रिक्वायर द फॉलो। सो फैसिलिटीज होती हैं इंक्लूड रिक्वायर जहाँ पर इंक्लूड द एग्जामिनेशन, ट्रीटमेंट एंड ट्रांसफर टू द सुटेबल एरिया, देयरफॉर रिक्वायर द एग्जामिनेशन रूम होता है, ट्रीटमेंट रूम होता है, एन ऑब्जर्वेशन एरिया होता है, स्टोरेज स्पेस होता है, स्टोरेज आप जो भी आइटम वगैरह स्टोरेज कर सकते हैं। ठीक है, या पेशेंट को के जो आइटम्स हैं उनको स्टोरेज करना, स्पेस होता है सब हर व्यक्ति के लिए अलग, वार्ड बॉय है या कोई डॉक्टर्स है सबके लिए स्पेस अलग होता है। पिक्चर्स होते हैं, अदर सपोर्ट सिस्टम सब सर्विसेज होती हैं। ये दीज ऑल द फैसिलिटीज हैं जो कि मैनेजमेंट के लिए बहुत ही जरूरी होती है और बहुत ही जरूरी है आप हिसाब से।
देन एन एग्जामिनेशन रूम। अब एग्जामिनेशन रूम में होता क्या है, देयर आर 2 और 3 एग्जामिनेशन टेबल सेपरेटेड बाय द कर्टेन। मतलब 2 या 3 एग्जामिनेशन टेबल होती हैं जो कर्टेन के द्वारा सेपरेटेड होती हैं टू कैरी आउट लाइफ सेविंग फर्स्ट एड प्रोसीजर। उन टेबलों के ऊपर जो लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है, बिफोर सेंडिंग द पेशेंट टू द ऑब्जर्वेशन वार्ड। मतलब ऑब्जर्वेशन वार्ड में भेजने से पहले पेशेंट को हम कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करते हैं, फर्स्ट एड प्रोसीजर करते हैं, जिससे कि पेशेंट की लाइफ को बचाया जा सकता है, जिसमें एग्जामिनेशन रूम के अंदर ये करते हैं। सेकेंड है आपका ट्रीटमेंट रूम। ट्रीटमेंट रूम के अंदर माइनर प्रोसीजर जो होते हैं, जैसे कि कैथेटराइजेशन करना, सुचरिंग ऑफ द स्मॉल वुंड होता है, ड्रेसिंग करना, बैंडेजेस करना, ये सारी चीजें वहां पर कैरिड आउट होती हैं इन द ट्रीटमेंट रूम के अंदर। थर्ड है आपका एन ऑब्जर्वेशन एरिया। ऑब्जर्वेशन एरिया डिपेंड करता है पेशेंट लोड पर। पेशेंट लोड का वह होता है जैसे कि 4 से 8 बेड्स होते हैं उस एरिया के अंदर, मतलब 4 से 8 बेड होते हैं उस एरिया के अंदर, पेशेंट लोड पे डिपेंड करता है। द फॉलोइंग पेशेंट केप्ट इन द ऑब्जर्वेशन वार्ड। मतलब कुछ जो पेशेंट होते हैं, निम्न प्रकार के पेशेंट जो होते हैं, उनको हम ऑब्जर्वेशन वार्ड में रखते हैं। जैसे कि पेशेंट वेटिंग एवेलुएटेड बाय पर्टिकुलर स्पेशलिटी, जो स्पेशलिटी के लिए जहाँ पर वो दिखाना चाहता है, ठीक है, उस एवेल्युएशन के लिए पेशेंट को एक वेटिंग रूम होता है, वहाँ पर पेशेंट को वेटिंग रूम में रखा जाता है। पेशेंट वेटिंग फॉर द इमरजेंसी मेडिकल एंड सर्जिकल प्रोसीजर, या कोई भी पेशेंट वेट कर रहा है इमरजेंसी मेडिकल एंड सर्जिकल प्रोसीजर के लिए, उसके लिए भी ऑब्जर्वेशन एरिया फुल दिया जाता है, रखा जाता है। पेशेंट हु हैव अंडरगॉन प्रिलिमिनरी इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन एंड नीड टू बी शिफ्टेड टू द एप्रोप्रिएट वार्ड एंड आफ्टर गेटिंग द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। तो पेशेंट यदि कोई भी प्रिलिमिनरी इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको पर्टिकुलर एप्रोप्रिएट वार्ड के अंदर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। शिफ्ट करने के बाद हम उसकी जो भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उनको हम भेज देंगे, भेज करके फिर वापस से हम उसको ऑब्जर्वेशन के लिए उसी रूम में रख देंगे। पेशेंट रिक्वायरिंग इंडोर एडमिशन हु ब्रॉट इन द क्रिटिकल कंडीशन। पेशेंट को यदि क्रिटिकल कंडीशंस या आफ्टर कोई भी इनिशियल थेरेपी या स्टेबलाइजेशन होने के बाद पेशेंट को इंडोर एडमिशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो हम उस इंडोर एडमिशन के दौरान हम पेशेंट को आईसीयू के अंदर या ऑपरेशन थिएटर और वार्ड के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। पेशेंट रिक्वायरिंग इंडोर एडमिशन हु ब्रॉट इन द क्रिटिकल कंडीशन एंड आफ्टर इनिशियल थेरेपी स्टेबलाइजेशन विल बी शिफ्टेड टू द आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर वार्ड। कोई भी पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है या किसी पेशेंट का आईसीयू से शिफ्ट करना होता है या किसी पेशेंट को वार्ड से शिफ्ट करना पड़ता है या कोई भी इनिशियल थेरेपी होती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में या पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन है, तो दीज कंडीशन इंडोर एडमिशन उनके लिए बहुत जरूरी होता है। पेशेंट हु बिकम फिट टू गो होम आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ देयर मेडिकल कंडीशन। ठीक है, पेशेंट यदि घर जाना चाहता है फिट होने के बाद, ट्रीटमेंट होने के बाद, या उसकी मेडिकल कंडीशन में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, जैसे कि पेशेंट एपिलेप्सी में है, स्टेटस एस्टेमेटिगस है, या डिहाइड्रेशन है, रेनाल कॉलिक है, इस तरह की जो कंडीशन होती हैं, यदि पेशेंट घर जाना चाहता है, यदि फिट है, तो उसको हम इस तरह के ऑब्जर्वेशन एरिया के अंदर हम उसको रखते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज स्पेस। स्टोरेज स्पेस के अंदर दिस इंक्लूड द लीनन। स्टोरेज स्पेस में हम लीनन रखते हैं, पेशेंट की जो लीनन्स होते हैं वो हम रखते हैं, बेडशीट्स वगैरह है आपकी जो भी है, वो सारी चीज़ें हम लीनन उसके अंदर रखते हैं पेशेंट की। और कंज्यूमेबल आइटम जो है, जैसे कि ड्रग्स हैं, आपके ड्रेसिंग मटेरियल्स हैं, आईवी फ्लूइड्स हैं, उनको भी हम स्टोरेज स्पेस के अंदर रखते हैं। इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट को भी वहाँ पर स्टोरेज स्पेस के अंदर रखा जाता है। स्पेस जो होता है फॉर यूज्ड एंड सॉइल्ड आर्टिकल। स्पेस का मतलब कुछ स्पेसेस अलग होते हैं जिनको हम एज ए सॉइल्ड आर्टिकल के रूप में यूज करते हैं। फिक्सर्स मींस क्या होता है? फिक्सर्स का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस होते हैं, मेडिकल गैस कनेक्शंस होते हैं या वैक्यूम कनेक्शन होते हैं, आर रिक्वायर्ड इन द ट्रीटमेंट एरिया। इस तरह के फिक्शन, जैसे आपने देखा होगा कि आपके वैक्यूम के लिए अलग से कनेक्टर होता है या ऑक्सीजन के अलग कनेक्शन होता है, मेडिकल के या अलग से कुछ पर्टिकुलर कनेक्शन होते हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होते हैं, जिसमें आपको डिफिब्रिलेटर है या कोई भी वेंटिलेटर है, उसको यदि जो भी कनेक्शन है उनको फिक्सर्स, हम सिर्फ फिक्सर्स होते हैं, उनको हम उसमें वार्ड में
अरेंजमेंट करके रखते हैं। एसेंशियल टू हैव ए जनरेटर इन कैजुअलिटी एरिया। कैजुअलिटी एरिया के अंदर एक जनरेटर होना बहुत जरूरी है। बिना जनरेटर, क्योंकि अचानक लाइट चली जाती है तो फिर पेशेंट को यदि ऑक्सीजन दी जा रही है, पेशेंट को कोई भी पर्टिकुलर थेरेपी दी जा रही है, उस थेरेपी के जो है उसमें लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रिकल की रिक्वायरमेंट होती है, लाइट चली जाती है, तो इस तरह की बहुत सी कंडीशन प्रॉब्लमेटिक कंडीशन डेवलप हो सकती है। उस कंडीशन में हमारे पास एक इमरजेंसी जनरेटर भी होना चाहिए। अदर सपोर्ट सर्विसेज के अंदर जैसे कि निम्न है आपकी अदर सपोर्ट सिस्टम में क्लिनिकल लेबोरेटरी फॉर कैरिंग आउट द अर्जेंट इन्वेस्टिगेशन। जो क्लिनिकल लेबोरेटरी होनी चाहिए, छोटी सी लेबोरेटरी उसके अंदर भी होनी चाहिए कैजुअलिटी के अंदर, जहां पर हम अर्जेंट इन्वेस्टिगेशन को कर सकें, जैसे कि ब्लड शुगर है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, ब्लड गैसेस है, CSF एग्जामिनेशन है। इस तरह की जो चीजें हैं हम इमरजेंसी हम उसके अंदर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लैब तो होती है अलग से, बट एक इमरजेंसी कैजुअलिटी के अंदर एक अलग से छोटी लैब होनी चाहिए, जहाँ पर जो इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन है, जो अर्जेंट इन्वेस्टिगेशन करने हैं, वो हम इजीली कर सकते हैं। रेडियोलॉजी मेनली रूटीन एक्सरेज हम कर सकते हैं, सोनोग्राफी कर सकते हैं, CT स्कैन कर सकते हैं, ये सारा बिल्कुल कैजुअलिटी के पास ही होना चाहिए। ब्लड बैंक और फॉर इमरजेंसी ट्रांसफ्यूजन, ब्लड बैंक होना चाहिए जहां पर हम तुरंत जो ब्लड का अरेंज करके उसको ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं इन द कंडीशन ऑफ इमरजेंसी। ऑपरेशन थिएटर फॉर द कैरिंग आउट द अर्जेंट प्रोसीजर। ऑपरेशन थिएटर भी के अंदर भी हम इस तरह के कुछ अर्जेंट प्रोसीजर हैं जिनको हम कर सकते हैं, जैसे कि फ्रैक्चर रिडक्शन, इंसिजन ऑफ सेसेस एटसेट्रा। तो थिएटर टेबल जो है फॉर क्लीन अनअफेक्टेड केसेस एंड अनदर वन थिएटर टेबल फॉर इन्फेक्टेड केसेस। इस तरह की जो चीजें हैं वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो कैजुअलिटी के जो पेशेंट हैं उनके लिए हम प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। So these are the some of the part of the here is emergency and disaster management, and this will be continue in the next class. Thank you everyone.